ताज ताज वाले आका आ गए, जिनकी मिल्कियत में दो जहान सब समा गए, जिनकी मिल्कियत झूम कर लबों पे आएंगे सदा, आरज़ू है झूम कर लबों पे आएंगे सदा। कब्र में तुझे देख कर शाह आ गए नबी, आ गए नबी, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, माला की आमद मरहबा, औला की आमद मरहबा, वाला की आमद मरहबा। खुदा हो रहा, ये जश्न हबीब खुदा हो रहा, ये मीलाद खैरुल वरा हो रहा, ये दुआद होता है घर घर। आ गए सरकार नबियों के सरदार, दो चक्के मुख्तार है सबके गमखार, बागारे है जिब्रील झंडा, करे का बागारे है जिब्रील झंडा, आलम तेरा दुनिया पे वाह हो रहा है, ये मीलाद खैरुल वरा हो रहा है। आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, माला की आमद मरहबा, औला की आमद मरहबा, वाला की आमद मरहबा, रसूल की आमद मुस्तफा 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 मरहबा। गूंजती है हर तरफ सदाए मरहबा, गूंजती है हर तरफ सदाए मरहबा। वो आए मुस्तफा, वो आए मुस्तफा, वो आए मुस्तफा, वो आए मुस्तफा। सरकार की आमद मरहबा, गमखार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे मरहबा, वो आए मुस्तफा, वो आए मुस्तफा। तेरी चमक दमक से आलम चमक रहा है, तेरी चमक दमक से आलम चमक रहा है, मेरे भी बख्ते चमका सुबह शबे। मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, माला की आमद मरहबा। बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी आखिरी जगह में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, घर महल तक दस झंडे लग गए, दिल खुशी से झूम उठे चेहरे सब चमक गए, दिल खुशी से झूम उठे चेहरे सब चमक गए। जश्न का समा हर तरफ बना, जश्न का समा
عبادت پناہ آ گئے چھپانے لگی ہمت کفروں کو چھپانے لگی خانہ کعبہ کی آواز آنے لگی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم شاہ آدم و بنی آدم سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہم چرچا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میلاد کی آمد کے صدقے میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کیا کرم فرمایا، اس میں سے ایک بات میں آپ نے تم پہ اپنی نعمت فرمائی، اس نعمت کو یاد کرو جس نعمت کی وجہ سے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو پیدا فرما دیا۔ یہ جو محبتیں ہیں، اسلام کی آمد سے پہلے کیسا دورہ تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں جھگڑے عام تھے، قتل و غارت گری عام تھے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ نے تم پہ کتنا بڑا احسان فرما دیا ہے، اللہ نے تم پہ کتنا بڑا کرم فرما دیا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے اپنے حبیب کی صورت میں تمہارے اندر بھیجی ہے۔ اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ان کے ذریعے محبت ڈال دی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے ہو۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنانے کے لیے بھیجا ہے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ کے محبوب کی آمد کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اوس و خزرج جیسے قبیلے 120 سال سے جن کی آپس میں لڑائیاں چلی آ رہی تھیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، جب ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہو جاتے ہیں
تو پھر آپس میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا، اللہ نے اپنے حبیب جیسی نعمت کے ذریعے ان دشمنوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا آپس میں اتفاق ہے، اتحاد ہے؟ ہمارے آج کل معاشرہ ایسا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم اللہ کے حبیب کی ذات سے دور ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حبیب کے ساتھ جڑ جائیں تو آپس میں محبتیں ہی محبتیں ہیں، پیار ہی پیار ہے۔ یہی معاشرہ جنت کا گہوارہ بن جائے گا کہ جب لوگ اللہ کے محبوب کی ذات سے جڑیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنا تعلق استوار رکھیں گے، تو پھر یہی معاشرہ، یہی لوگ آپس میں محبتوں والے بن جائیں گے۔ آج ہمارے اندر لڑائی جھگڑوں کی ایک عام وجہ یہ بھی ہے کہ ذات مصطفیٰ سے دور ہیں، اللہ کے محبوب کی سنت سے دور ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو پھر یہ آج بھی یہ معاشرہ آپس میں بھائی چارہ کا ایک عظیم مثالی معاشرہ بن سکتا ہے کہ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو پہچانے اور اس چیز کو جاننے اور پھر آپس میں اتفاق، اتحاد، الفت، محبت کو قائم کرے۔ اب یہ تو دنیا کے اعتبار سے تھا۔ اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں لڑائیاں جھگڑوں کا سبب کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی بندہ جاتا ہے دوسرے کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے فلاں نے تیرے بارے میں ایسے کہہ دیا ہے، یہ بات کی ہے، ایسا کہا ہے۔ اب یہ اپنے دل میں ایک گمان بنا کے بیٹھ جاتا ہے اور بد ظن ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اپنے دل کے اندر نفرت شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ اس بندے کا کہ یہ بندہ تھا، پہلے اس سے جا کے پوچھتا بھائی کیا بات ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، آپ نے یہ بات کی ہے، کیوں کی ہے؟ تو عام طور پہ ایسی بات ہوتی نہیں ہے۔ اگر ڈائریکٹ جس سے مسئلہ ہوتا ہے بندہ اسی سے جا کے مل لے تو سمجھے 95% لڑائیوں کی جڑیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اندر یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم اپنی ذہن میں ایک خاکہ بناتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ہمارے اندر دشمنیاں رواج پاتی ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، لوگوں کو آپس میں محبتوں کا گہوارہ بنانے کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے تم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، وہ جو نعمت میں نے تمہیں عطا فرمائی ہے، وہ جو میں نے اپنا حبیب تم میں بھیجا ہے، اپنا مصطفیٰ جان رحمت تم پہ بھیج دیا ہے، فرماتا ہے اللہ رب العالمین اس نے تمہیں پکڑا، جہنم کے کنارے میں تم پہ کھڑے تھے لیکن اس حبیب نے پکڑا تمہیں جنت میں داخل فرما دیا ہے۔ وہ جو جہنم میں جانے والے تھے، جہنم میں گرنے والے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ جنت میں جانے والے بن گئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دو طرح کا کام ہوا۔ دنیاوی اعتبار سے جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے، اور اخروی اعتبار سے جو جہنم میں جانے والے تھے وہ جنت میں جانے والے بن گئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو آپ کا حسن اخلاق ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ جو دو کام ہوئے ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں ہمیں آپس میں بھائی چارہ نصیب فرمائے، آخرت میں جنت نصیب فرمائے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے خوب چرچے اور آپ کی آمد کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماشاءاللہ یہ کتنا بابرکت دن ہے، یعنی ہم آپ کے ساتھ جمع ہوں۔ وہ دن کون سا ہے؟ 12 ربیع الاول شریف کا، یعنی آقا کی ولادت کا جو دن ہے، یہ ایسا دن ہے یعنی کثرت کے ساتھ مسلمانوں سے ملاقات، مسلمانوں کا قرب، آپ کا دیدار ہوتا ہے ماشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف کو۔ اللہ عز و جل بار بار یہ دن لائے، اللہ محبت سلامت رکھے۔ تو اصل چیز ہے بندہ مومن جب کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے نا، اس سے پہلے وہ نیت کرتا ہے کہ یہ میرا قدم کس لیے اٹھ رہا ہے۔ تو قدم اٹھ رہا ہے نیکی کی طرف، قدم اٹھ رہا ہے گناہ کی طرف،
कदम उठ रहा है किसी बुराई की तरफ, यानी पता होता है, तो मुसलमान हर कदम उठाने से पहले सोचता है ये मेरा कदम जन्नत की तरफ जा रहा है या जहन्नम की तरफ जा रहा है। अगर कसरत के साथ हमारे कदम बुराई की तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की तरफ उठ रहे हैं, तो आज हमें अपने कदमों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी अपनी नीयतों के किबले दुरुस्त करने पड़ेंगे कि हर काम करने से पहले, कदम उठाने से पहले सोचना है ये अल्लाह की रिजा के लिए है या अल्लाह की नाराजगी के लिए है। अगर तो अल्लाह की नाराजगी के लिए हो, कदम वापस पलटेगा, ये वापस बज़ाहिर पलट रहा है, लेकिन ये वापस पलटना है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि लोगों जन्नत तो 2 कदम पर है। पूछा हुजूर इतनी आसान जन्नत? फरमाया हाँ, जन्नत 2 कदम पर है। पूछा गया कैसे? फरमाया कि एक कदम अपने नफ्स पर रखो, दूसरा कदम उठेगा जन्नत में पहुंच जाएगा। इसका मतलब यह है इंसान की ख्वाहिशात, जब ख्वाहिश अंदर उभरती है फिर इंसान उस ख्वाहिश को पूरा करने की तरफ बढ़ता है। अगर ख्वाहिश पूरी करता है वो नाजायज है तो यकीनन अल्लाह की नाफरमानी आती है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने फरमाया कुरान में, अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवा, ए महबूब क्या आपने उनको देखा नहीं जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को अपना रब बनाया है, जो ख्वाहिश में आता है वो ही करते चले जाते हैं। तो ख्वाहिशात पे चलना, हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं, फरमाया नफसानी ख्वाहिश ये बंदे को गुमराह करती है। लंबी 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 उम्मीदें रखना, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, यूं इंसान बुरे और अच्छे कदम उठाता है। अगर तो लंबी सोच नेकी पर हो, अगर वो काम ना भी कर सका सवाब मिलेगा। अगर उसने बुराई की तरफ कदम उठाया, बुराई की तरफ कदम उठा रहा है और उसकी नीयत, उसकी सोच बुराई की है और इसी हाल में चला गया, तो खातिमा कैसा है? हमें हर वक्त अपनी सोच की, अपनी फिक्र की, अपने अमल की हिफाजत करनी है। यह हिफाजत कौन सी चीज करवा सकती है? इश्क़ मुस्तफ़ा, ये हमारी हिफाजत करवा सकता है। तो मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूंगा, उस आयत में 4 चीजें हैं। आपने यूं समझना कि बंदा डॉक्टर के पास जाता है, बंदा कहता है मुझे फुला मर्ज है, डॉक्टर चेक करता है, टेस्ट करता है, नब्ज पकड़ता है, फिर वो मर्ज की तशखीस करता है। जब उसको पता चल जाता भाई आपको फुला मर्ज है, उसके बाद वो नुस्खा सोचता है, लिखता है कि इसको कितने दिनों में कैसे शिफा होगी, फिर वो नुस्खा लिखता है। नुस्खा लिखने के बाद फिर उसको वो कहता है कि ये दवा ले ले, सुबह इतनी, शाम को इतनी, रात को इतनी, यूं करके आपने खानी है, इतने दिनों में आपको शिफा मिल जाएगी। गोया कि आपने समझना है, वो जो आयत में पढ़ने लगा हूं ना, उस आयत में 4 चीजें हैं और हमारा रब हमें बता रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने और हर अमल की निस्बत अपने महबूब की तरफ फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही, फरमाया उस नबी पर ईमान लेकर आओ, ईमान लाकर उस मेरे महबूब से वाबस्ता हो जाओ, मेरे महबूब के कदमों में आ जाओ, उसकी गुलामी का पटा अपने गले में डाल लो, मोहब्बत करो, उस महबूब के कदमों में पहुंच जाओ ईमान लाकर। फरमाया जब ईमान ले आओगे फिर होगा क्या? ईमान की चाशनी, ईमान की मजबूती, इसका इजहार कैसे होता है? वल्लज़ीना युतूना मा आतव व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। इसमें बताया गया सच्चा मोमिन वो होता है कि वो अल्लाह से डरता है। अगर अल्लाह का खौफ हम मुसलमानों के दिल में नहीं है, दुनिया के कितने खौफ दिलों में बैठे हुए हैं जिसकी वजह से हम सुबह शाम गुनाहों में मुलविस होते हैं। तो रब का खौफ, बंदा बाजार में हो, गली में हो, घर में हो, जहां भी हो, अल्लाह का खौफ ये बंदे के अमल का मुहाफिज है। तो ईमान लाना है, ईमान लाने के बाद अल्लाह का खौफ अपने दिल में बिठाना है। खौफ खुदा ये मुहाफिज है, आपकी हिफाजत करेगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ने फरमाया अल खौफ रकीबुल अमल, खौफ खुदा ये बंदे के अमल का मुहाफिज है। यूं कहने के अल्लाह का खौफ दिल में बैठ गया ना, नाजायज बोल नहीं सकेंगे आप, नाजायज सुनने की तरफ कान नहीं बढ़ेंगे, ये जबान भी हिफाजत में आएगी, कान भी हिफाजत में आएंगे, दिमाग भी हिफाजत में चला जाएगा। ये कदम भी कभी गुनाहों की वादी की तरफ नहीं जाएंगे। पहली चीज नियत करें कि इंशाअल्लाह ईमान की चाशनी, अल्लाह का खौफ
अपने दिल में बसा के इंशाल्लाह हासिल करेंगे। खौफ खुदा के साथ साथ इश्क रसूल भी बिठाएंगे। क्यों? रब कह रहा है इस रसूल पर ईमान लाओ। दूसरी चीज फरमाया वाज़रूहु, फरमाया उस नबी की ताजीम करो, ताजीम करो। अब देखें भाई, अब हम ताजीम कैसे कर सकते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत? अभी जो हमने ये चक्कर लगाया, ये हमारा गांव है, वही गलियां हैं, लेकिन मुस्तफ़ा के नाम पर इकट्ठे हुए, मुस्तफ़ा मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे बुलंद करते हुए यहां पहुंचे। मकसद कोई भी नहीं, मकसद महज ये कि ताज़ीम मुस्तफ़ा कर ले। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया ये मिलाद मुस्तफ़ा क्यों किया जाता है? फरमाया ये ताज़ीम मुस्तफ़ा के लिए किया जाता है, अल्लाह के महबूब की इज्जत और तकरीम के लिए किया जाता। तो मेरी गुजारिश है, मिलाद मुस्तफ़ा से कोई घर खाली नहीं होना चाहिए, किसी की दुकान खाली नहीं होनी चाहिए। हाल मैं देता हूं आपको, आपने कोई लंगर कुछ भी नहीं करना। ये देखें कितने आशिकान रसूल खड़े हैं माशाल्लाह, कोई आलिम बनने वाले हैं, कोई बिल्कुल करीब है, इनको कहें यार आओ मेरी दुकान में महफिल मिलाद करते हैं। कोई भी ना हो, आप अकेले हैं, इनको कहें तिलावत करें, इनको कहें यार हुजूर के नात पढ़ें, 2 अशार सुना दे, फिर कहे कोई हदीसे पाक सुना दे, लो जी दुआ कर ले, इंशाल्लाह मिलाद पाक की बरकत मिल सकती है। आसान है कि मुश्किल है? हम हाजिर है, कोई लंगर नहीं, कोई किसी भी चीज का एहतमाम नहीं कर रहा। ये मेरा ज़हन बना, जामियातुल मदीना के तलबा को मैं देख रहा हूँ, अल्लाह पाक ने कैसा इश्क रसूल उनके दिलों में रखा है। मेरे पास कारकर्दगी आ रही है, 2-3 तलबा इकट्ठे होके जाते हैं दुकान पर, कहते हैं हम मिलाद मुस्तफ़ा करेंगे यहाँ, वो तिलावत करते हैं, नाज पढ़ते हैं, हदीसे पाक बयान करते हैं, यूं मिलाद करके लो जी दुआ करके बाहर निकल आते हैं। तो यूं अब हम सोच रहे हैं बैनर के लिए पैसे नहीं है, देखों के लिए नहीं है, ओ जिससे बयान करवाना उसको पैसे देने के लिए खर्चा नहीं है, और इस वजह से मिलाद मुस्तफ़ा रुक रहा है। आप अपने घर में, दुकान में इस अंदाज में नियत करते हैं, इंशाल्लाह ये आसान फार्मूला, इंशाल्लाह ये सारे फीस भी लीला करेंगे। कोई दुकान, कोई घर खाली नहीं होना चाहिए। जितने घर के अफराद हैं इनको भी ना बुलाएं, आप तिलावत कर सकते हैं, तिलावत करें, नाज शरीफ पढ़ें, बयान कर ले, इंशाल्लाह मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत पाएंगे। यूं ताज़ीम मुस्तफ़ा भी 2 चीजें अभी बयान करी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पर ईमान लाना, और ईमान ऐसा जिस तरह सिद्दीक़ अकबर लेके आए थे। ईमान लाने के बाद फिर ये नहीं है जिंदगी यूं हो कि बस बेलगाम जिंदगी नहीं, जब ईमान ले आए फिर एक दायरे में आ जाएंगे, हम संभल कर चलेंगे, संभल कर बोलेंगे, संभल कर सोचेंगे, क्या सोच रहे हैं, ये किस लिए सोच रहे हैं, इंशाल्लाह मोहतात हो जाएंगे। दूसरा ये कि मिलाद मुस्तफ़ा करके ताज़ीम मुस्तफ़ा करेंगे इंशाल्लाह। तीसरी चीज व नसरूहु, अल्लाह पाक ने फरमाया इस नबी के दीन की मदद करो। अब दीन की मदद के कई तरीके हैं जी। आप अल्लाह की राह में चंदा भी दे सकते हैं, आप अपना बेटा अल्लाह की राह में भेज दे, फरमाया इसको आलिम बनाए, इसको हाफिज कुरान बनाए, यूं भी दीन की मदद है। तो यूं करके दीन की मदद के कई सारे जराए, खुद आप नमाजी बन जाए, खुद इस तरह दीनी कामों के अंदर आपकी तड़प हो। देखें आप मदरसा नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, लेकिन आपकी तड़प होनी चाहिए कि मेरे जरिए मस्जिद बन जाए, मेरे जरिए मदरसा बन जाए, मेरे जरिए ये दीन का काम बढ़े। सही बात है, अगर यानी कभी सोच में ये आए ना कि मेरी वजह से दीन का काम रुक जाए, हमें उससे पहले मर जाना चाहिए। और जब तक ये सोच ये हो दीन फैले, दीन बढ़े, दीन तरक्की करे, तो ये अच्छे मुसलमान के अच्छे नसीब की बात है। व नसरूहु, फरमाया जिस पर ईमान लाए, जिसकी इज्जत और तकरीम कर रहे हो, फरमाया इसी नबी के दीन की मदद करो। 3 चीजें हो गई। चौथी चीज फरमाया वत्तबअन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, फरमाया उस नूर की पैरवी करो जो उसके साथ नाजिल किया गया। इस नबी के साथ जो नाजिल किया गया ना, उस नूर की इताअत करो, इत्तिबा करो। वो नूर कौन सा है? अल्लाह पाक ने अपने नबी पर किताबे हिदायत उतारी है। यानी हम समझ रहे हैं मैंने बोलना क्या है, सोचना क्या है, चलना क्या है, कारोबार कैसे करना है, ये सारी चीजें कहां से लेनी है? कुरान पाक से। जिंदगी गुजारने के ढंग कहां से लेने हैं? अल्लाह की किताब से। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब हमें बताती है कि जिंदगी किस तरह गुजारनी है। लेकिन आपको मुझे ये एहसास होना चाहिए हम कुरान पाक से बहुत दूर हैं, इसका कुर्ब पाएं, इसकी तरफ बढ़ें, इंशाअल्लाह जिंदगी मिसाली जिंदगी बन जाएगी। और ये 4 चीजें रब बयान फरमा के फिर पता क्या फरमाता है? डॉक्टर नुस्खा लिखता है, लिखने के बाद कहता है इतने दिन में शिफा मिल जाएगी। तो अल्लाह पाक भी फरमा रहा है इस रसूल पर ईमान लाओ,
इसको इज्जत और तकरीम करो, इसके दीन की मदद करो, इस पर जो कुरान नाजिल किया गया उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, यहां से हिदायत लो। अल्लाह पाक फरमाता उलाइका हुमुल मुफलिहून, फरमाया यही लोग फलाह पाने वाले होंगे। कामयाबी लेनी है, नियत तो करो ना यार, सरकार की आमद, आका की आमद। यार रसूलुल्लाह की ताजीम के लिए निकले हैं तो अच्छी अच्छी नियतें हो जाएं। एक आयत में 4 चीजें बयान की, तो इंशाअल्लाह हम इन 4 चीजों पे अमल करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। नतीजा क्या निकलेगा? कामयाब हो जाएंगे। अभी मुझे आपको पता नहीं है कि हम कामयाब हैं कि नाकाम, लेकिन हमारा काम है कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाना। अल्लाह हमारी मदद करेगा। जब अल्लाह की मदद आएगी ना तो इंशाअल्लाह ये मदद आना और फिर यूं ही दुनिया से चले जाना। अल्लाह पाक हम सब को सलामती ईमान के साथ इस दुनिया से लेकर जाए। अभी एक बार अलहम शरीफ 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें। देखिए पिछले रबीउल अव्वल शरीफ में इसी दिन कितने लोग थे हमारे साथ, आज कब्रों में हैं, उनके लिए दुआ कर लेते हैं। अच्छा, जितने 12 रबीउल अव्वल के जुलूस जब से हो रहे हैं, कितने आशिकाने रसूल हमारे साथ, 1 साल होते हैं अगले साल दुनिया से। अब हमें नहीं पता कि हम में से अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा, उनको हम दुआओं में याद रखते हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की मोहब्बत की वजह से हमें दीन सीखना है, दीन का कुर्ब पाना है। सही बात है, बहुत दूरी है, हमारी ज़िंदगी इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। हम मुसलमान हैं, इस्लाम तकाजा कर रहा है मुसलमान अपनी ज़िंदगी मेरे मुताबिक बना। बहुत सुस्ती हो रही है, गफलत हो रही है। अपने आप को कम अज़ कम सबसे पहला काम नमाज अगर पढ़ना शुरू कर देंगे ना, ये 4 चीज़ों पे इंशाल्लाह अमल आसान हो जाएगा। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहिन नबी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना फ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या रब्बल आलमीन, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ज़िक्र खैर हुआ, तालीमात मुस्तफ़ा का ज़िक्र हुआ। या रब्बल आलमीन, हम सब को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अपने महबूब का आशिक़ कामिल बना। या रब्बल आलमीन, हम सब को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल मोहब्बत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, उनकी तालीमात की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बना। या रब्बल आलमीन, हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। या रब्बल आलमीन, हमने तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के लिए और उस नेमत के चर्चे के लिए जो तूने हम पे की है, या अल्लाह उसके लिए हमने थोड़ा सा वक्त निकाला है। या अल्लाह, इस वक्त को हमारे लिए कारआमद बना। या रब्बल आलमीन, इस वक्त को हमारे लिए नेकियों का ज़रिया बना, नमाजी बनने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, हम सब को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सदके आपस में मोहब्बतें उल्फतें नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, आपस की नफ़रतों को ख़त्म फरमा। या रब्बल आलमीन, दूरियों को नज़दीकियों में तब्दील फरमा। या रब्बल आलमीन, मोमिनों को आपस में भाई भाई बन के रहने की तौफीक अता फरमा। एक दूसरे के गम परेशानी में एक दूसरे का साथ देने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, सूरतुल फातिहा सूरह इखलास की तिलावत की गई। या रब्बल आलमीन, पिछले साल जो हमारे साथ जुलूस में शामिल थे अब नहीं है, या जब से जुलूस मिलाद का आगाज़ हुआ है, या अल्लाह वो हर साल जो जुलूस में शामिल होते थे अब हमारे साथ मौजूद नहीं है। या रब्बल आलमीन, उन सब की कब्रों को जन्नत का गहवरा बना। या रब्बल आलमीन, उनकी कब्रों पे अपने नवारो तजल्लियात का नज़ूल फरमा। या रब्बल आलमीन, बरोज़े माशर उन सब को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, हम जो ज़िंदा हैं हमें क़ब्र हशर की तैयारी करने वाला बना, नेकियों वाली ज़िंदगी अता फरमा, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, यहाँ जितने हाज़िरीन हैं इनसे ताल्लुक़दार, रिश्तेदार, अजीज़ व क़ारिब, जो कोई दुनिया से चला गया
یا رب العالمین سب کے لیے دعا گو ہیں یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا رب العالمین سب کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرما اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما یا رب العالمین اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما یا رب العالمین ہم سب کو دین والا بنا یا اللہ ہم کو مساجد آباد کرنے والا بنا یا رب العالمین قرآن و سنت کا ہم سب کو فہم نصیب فرما قرآن پاک صحیح معنی میں پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ